ओके। वेयर इज निकोलस? वो पहले क्लास में भी नहीं था? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। हम आगे पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्लास जो प्रसखा मैडम लेने वाले थे ना? हाँ, वो नेक्स्ट क्लास वो मैडम नहीं लेंगे, वो कल मेरे जगह पे लेंगे, तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे दूसरा जो करंट एनवायरमेंटल इशू है। हाँ, वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे 9 बजे से। अभी 8 से 9 हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर 9 से 10 वो हम पढ़ेंगे करंट एनवायरमेंटल इशू। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय विंडो। So before going to the next chapter, that is, we studied about population. Just 5 minutes we have remember what are the things studied in Sunday, last Sunday. Then what are the different levels of ecology? Can you just summarize? What are the different? There are 6 levels are there. What are the different 6? Just look your copy or and just say what are the levels, different levels. बोलिए। Yes, correct. Is my screen is visible to you? Yes. Okay. Okay, let's see what are the levels. First is individual species. Next step is called population. Next is community, then ecosystem, then biome, then biosphere. So yes. So can you say what is the individual and what is a species? What is individual species? What you just understand? Just say in your own language. किसको individual species बोलते हैं? Hmm. Yes, individual. Yes, correct, correct. That common types of organic means organism which can reproduce to form reproduce which can reproduce among to form new offsprings, जो नया बच्चा पैदा कर सकते हैं, these are called species. And individual means अकेला, one single. Next step is called population. Population means similar type of organism or similar species having more number. That is called populations. Here you can see similar species one is called individual and similar species more in number, that is called population. So today we are going to study about the different attributes and different types of the characteristics of population. What is population? How it can manage? Let's going to study that. So this is called. It is visible now. Screen is fully visible to you. Okay. So let's start population ecology. So population means a group of similar species in a short term is called population. See here, this is the similar species in this figure. It describes as the what is this? These are the sea whales. That means it can be more in number. So what are the different attributes are there? Population ecology is the study of the population in relation to the environment. Population and population ecology, there are two terms. Population means a group of similar species, and population ecology means this group of similar species what is the relation to the environment, because there is term ecology. Ecology के साथ population को मिला दिया means what are the relation between their environment to the not single species to the group of species. This is called population ecology. It includes environmental influence on population density, distribution, age, structure and variation of population size. यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड्स दिया गया है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इसका मीनिंग है क्या एनवायरमेंट में उसका इन्फ्लुएंस है। एक ग्रुप ऑफ स्पेसिस एक जगह पे रहेंगे तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस इट कैन बी
opposed to the environment. उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी किसको बोलते हैं, कुछ आइडिया है? ये घनत्व, यस, दैट मीन्स इन ए पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर स्पेस में कितना अमाउंट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेसिस फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। दैट मीन्स कितना घनत्व है एक जगह पे, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, एक स्क्वायर मीटर में कितना स्पेसिस है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन सिर्फ डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम, दिस इज डिफरेंट थिंग इन केमिस्ट्री, मास पर वॉल्यूम, वो घन, यस, इसको घनत्व बोलते हैं। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया में कितने आप कितने नंबर ऑफ स्पेसिस रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? हाँ, ये मेरे स्क्रीन में कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, वो दिख रहा है ना आपको? हाँ, मान लो ये दिस इज द एरिया where there are 50 numbers of individual species are there. So let's area of the rectangle is 50 kilometer square. Okay, so what is the density? Density D equal to number of the species by total area कितना है, तो डेंसिटी क्या होगा, 50 नंबर्स है, एन इक्वल टू 50 है, और एरिया ए इक्वल टू भी 50 है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एन बाय ए। ये समझ में आया? सिंपल पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं। अभी क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो 50 लोग यहाँ पे हैं, ये छोटा एरिया में 50 लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रह रहे हैं, तो कैसे रहते हैं, तो व्हाट आर द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो 50 लोग हैं ये कैसे रहते हैं, व्हाट आर द पैटर्न्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू दैट एरिया। मान लो ये एरिया में पानी सिर्फ ये कोने कोने पे पानी है, तो सारे जो स्पेसिस कहाँ रहेंगे, पानी के आसपास रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, और बाकी यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। मान लो पानी हर जगह है, खाना भी हर जगह अवेलेबल है, सो दिस 50 नंबर ऑफ स्पेसिस पॉपुलेशन क्या होगा, यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ दिस पॉपुलेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया। थर्ड टर्म इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। जो 50 नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहीं पे है, सबका एज तो सेम नहीं है ना, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई मिडिल एज में है। सो व्हाट आर द डिफरेंट एज ग्रुप्स आर रिसाइडिंग, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर। Then variation in population size. Population size variation means this is one area, this is another area, this is a third area. What are the different population size is there? कितने numbers है, मतलब population size भी 10 नंबर, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मान लो 20 है, यहाँ पे 5 है, कोई दूसरा है यहाँ पे 100 होगा। So let's see what are the different numbers of population varies with different type of systems. So these are the different attributes where we are going to study more details. So definition of a population is the, what is this? Is a population is a group of individual of the same species living in the same general area. This is the exact definition. एक ही एरिया में पॉपुलेशन को जितना भी स्पेसिस रहेंगे, सेम स्पेसिस, मान लो यहाँ पे 50 नंबर्स ऑफ क्या है, डॉग है, डॉग, और 20 नंबर्स ऑफ horse है, horse, तो what is the population species of dog? Only 50. What is the population is dog is 50 and horse is 20, but not 70. ये टोटल मिलाना नहीं है, जब हम मिला देंगे दोनों को ये कम्युनिटी में आ जाएगा और ऊपर एडवांस वर्जन में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया। एक एरिया में कितने स्पेसीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने सेम टाइप ऑफ स्पेसीज रहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। Density and dispersion already I have discussed. Density is the number of individual per unit area. जैसे कि मैंने बोला, ये फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी इक्वल टू नंबर बाय एरिया, ये इसका ए। लेकिन हमारे जो केमिस्ट्री में था डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास वॉल्यूम, ये था। लेकिन अभी ये पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, एन बाय ए। एन इज नंबर, ए इज एरिया। एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन अभी मैंने बताया is the pattern or spacing among the individual within the boundary of the population। जैसे कि ये बाउंड्री है,
ये बाउंड्री में कहां कहां डिस्पर्स होके वो लोग रहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, इसका भी पैटर्न होता है। Next, population density results from interplay of process that add individuals and those that remove from the population. What it tells? Let's understand. ये एक एरिया है, तो दिस एरिया इज नॉट सराउंडेड बाय जेल के बाउंड्री में तो सराउंडेड नहीं है ना, दिस एरिया इज नॉट में क्लोज टू द आउटसाइड, ये एरिया इनसाइड है, ये आउटसाइड है, इनसाइड ये आउटसाइड। सो ये जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ किया है ये बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री है, दिस इज नॉट ए क्लोज फेंसिंग, यहाँ पे कोई बाउंड्री अपने आप नेचुरल ने कोई लगाया नहीं है, बस हाँ हम ये सोच रहे हैं कि ये ग्रासलैंड, दिस इज ग्रासलैंड एंड दिस टाइप ऑफ मिनिमम स्पेसेस आर फाउंड इन दिस एरिया। सो दिस बाउंड्री inside boundary and another equal outside boundary. So there are some migration occur from outside to inside and inside to outside. यहां से कुछ इधर भी चले जाएंगे, इधर भी कुछ इधर भी चले जाएंगे. These are also we have to study how much individuals are migrating from inside to outside or how much migrate from outside to inside. These are also attributes of this population study. इमिग्रेशन एंड बर्थ एड इंडिविजुअल, यहाँ पे 50 लोग हैं, तो ये जब आउटसाइड सम स्पेसिस आर माइग्रेटिंग टू दिस, तो इस कैन ऐड, तो मान लो 2 लोग इधर से आ गए तो कितना हुआ 52। और कैसे पढ़ सकते हैं, इफ देयर इज ए बर्थ ऑकर्स, कोई नया बच्चा जन्म लिया, मान लो 2 या 3 बच्चा अंदर ही जन्म लिए, नया बाहर से नहीं आए, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा कि नहीं, 52 53 हो जाएगा। So this immigration and birth which adds individual. So population में individual कैसे बढ़ेंगे, by the 2 things, one is called birth and other is called immigration, तो बाहर से आया। उसका opposite क्या होगा, ये species यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ कम कैसे हो जाएंगे, either it can moves inside to outside या कोई मर जाएगा यहाँ पे, तो it also decrease or remove the individuals. So you have to remember these things. Which things add individual, immigration and birth add individual and death and immigration removes individual. See, this is the important thing, immigration and immigration both are immigration, बस spelling में difference है, IMMIGR immigration means plus बाहर से अंदर आएंगे, और EMIGR immigration means अंदर से बाहर जाएंगे। Are you clear? So these are the different attributes how the population of the density increases or decreases. How increases, either immigration or birth, how it is decreases, either death or immigration. Pattern or dispersion, abhi see what are the different patterns. This pattern of dispersion which can affect environmental and social factors. These environmental and social factors that depends the patterns of the distribution. क्या pattern distribution कैसे depend करता है, अभी मैंने example दिया, these are the area where only water body is found in a one side. So क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा individual moves toward this side where this environmental resource, the food, water and all these things resources are present, all the populations or are migrating towards that. It is a one factor. दूसरा क्या होगा, सोशल फैक्टर, दिस इज एनवायरमेंटल फैक्टर, यहाँ पे वाटर और फूड मिला उनको। दूसरा इज द सेकंड इज द सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, व्हाट इज द सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर जैसे कि बता सकते हो क्या है? हाँ, ये तो ह्यूमंस के केस में जॉब कर रहे हैं, मान लो ये फील्ड है, उसमें इतने सारे कुत्ते रहते हैं, मान लो 50 नंबर ऑफ कुत्ता रहता है यहाँ पे, डॉग, तो जहाँ पे खाना पानी मिलेगा वो तो उधर भागेंगे, और कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, यहाँ पे खाना पानी नहीं है फिर भी इधर भाग रहे हैं, ड्यू टू द सोशल फैक्टर। क्यों भागेंगे? नहीं, यहाँ पे बचने के लिए किससे बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुत्ते हैं, कोई दूसरा नहीं है, हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई एनिमल प्राणी नहीं है उसको मारने के लिए। सोशल सोशल फैक्टर, मान लो यहाँ पे क्या है ना, एक माई कुत्ती बैठा हुआ है और यहाँ पे 50 कुत्ते हैं, तो क्या हुए, फॉर मेटिंग, वो लोग भागेंगे नहीं उसके पीछे, बोलिए, तो दिस इज कॉल्ड सोशल फैक्टर। ये हाँ, तो यहाँ पे
खाना पानी रहते हुए भी बाकी सारे लोग इधर भागेंगे, क्योंकि दिस सोशल फैक्टर्स दैट इफेक्ट, तो अभी ये जगह खाली हो जाएगा। सो दिस इज अ सोशल फैक्टर। नहीं तो और भी हो सकता है, यहाँ पे जो जितने भी सारे स्पेसिस है उसका एक लीडर आ जाएगा, मान लो कोई डोमिनेंट लीडर आ जाएगा, वो यहाँ पे बोलेगा ये मेरे इलाका है, तुम यहाँ पे आने मत दो, सबको भगा देगा इधर, तो ये अकेला इधर रहेगा, बाकी लोग इधर रहेंगे। सो दिस डोमिनेंट फैक्टर दैट मीन्स फॉर मेटिंग और फॉर लीडरशिप दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पैटर्न्स। एंड देन इज एनवायरमेंटल, दूसरा हो गया खाना और पानी, एनवायरमेंटल। सो दिस एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स, these are the main which can be factors for the pattern for dispersion। वो कैसे रहेंगे, these two factors effect influence of the spacing of individual in a population, this is called pattern, कितना spacing रहते हैं वो लोग, this is called dispersion। pattern, तो there are different types of pattern। first pattern is called clumped, क्लॉम्ब डिस्पर्सन। तो किसको बोलते हैं क्लॉम्ब डिस्पर्सन? इंडिविजुअल्स एग्रीगेट इन पेचेस, पेचेस दिस इज बोलते हैं। ये यहाँ पे कुछ कुछ इंडिविजुअल एग्रीगेट हो गए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ इंडिविजुअल एग्रीगेट हो गए हैं, दीज आर क्लॉम्ब्स। सो दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सन इज कॉल्ड individual aggregate in patches, this is called clump dispersion। grouping may be result in the fact of multiple individuals can be cooperate effectively। ये अपना ग्रुप बना के रह रहे हैं, इधर कुछ लोग ग्रुप बना के रह रहे हैं, इधर भी कुछ स्पेसिस जो है ग्रुप बना के रह रहे हैं। एग्जाम्पल, इन अ वुल्फ पैक और अटैक प्रे और एंटेलोप टू अवॉइड प्रीडेटर्स। ये ग्रुप में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बाहर से कोई आ जाएगा तो उनको क्या बच कर रह सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ रिसोर्स और बिकॉज ऑफ रिसोर्स डिस्पर्सन। तो रिसोर्स डिस्पर्सन में जो वाटर और फूड जहां पे मिलेगा उसको साथ में मिल बांट के खाने के लिए वो लोग रहते हैं। एग्जाम्पल, मशरूम क्लम्स इन ए रोटिंग लॉग, दैट मीन्स कोई मशरूम एक ऐसे एक जगह पे मशरूम क्या होता है, मशरूम जो है एक जगह पे ऐसे ऐसे ग्रुप होके होता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ओनली इट कैन ग्रो, हर जगह पे यूनिफॉर्मली मशरूम ग्रो नहीं होता। ये तो एग्जाम्पल, यू मे गिव योर ओन एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पैटर्न इज कॉल्ड क्लॉम्ब डिस्पर्सन। दिस इज आपका क्लॉम्ब डिस्पर्सन का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अभी आप ऐसे देखे हो, ऐसे मछली जहाँ पे समुद्र में एक साथ में हजारों हजारों जाते रहते हैं, ये जंगल में ऐसे भेड़ बकरी भी ग्रुप में रहते हैं, ये भी ऐसे ग्रुप में, जहां पे भी ग्रुप में रहते हैं और एक एक पैचेस में, उसको बोलते हैं क्लॉम्ब डिस्पर्सन। इंडिविजुअल स्पेस नहीं रहता है उनके बीच में। पैटर्न और एक डिस्पर्सन होता है यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, दिस इज सिंपल डिस्पर्सन, मतलब पूरा ये जो स्पेसिस यहाँ पे है, पूरा यहाँ पे इंडिविजुअली, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हो रहा है, कहीं पे भी पैचेस पैचेस नहीं रहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चारों तरफ रहेंगे। दिस इंडिविजुअल डिस्पर्सन इज कॉल्ड सोशल इंटरप्रिटेशन सच एज टेरिटोरियलिटी, and this is influenced by territoriality। what is the territoriality? That means one animal or one species having some local boundary around each other। ये species जो है यहाँ पे जो भी है, एक मान लो एक नंबर रह रहा है, यहाँ पे 2 नंबर रह रहा है, वो अपने आप में एक एरिया बना लेता है, तो ये जो एरिया है दूसरा कोई नहीं आ सकता है, तो हर एक स्पेसिस क्या करते हैं, दे खुद अपने एरिया बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मान लो कोई बियर है फॉरेस्ट में, तो दिस बियर कैन बी मेक इज ओन टेरिटरी बाय जस्ट सीड्स आउटसाइड एंड यूरिनेट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। वो अपना क्या करते हैं, गंद छोड़ने के लिए एक एक जगह पे वो अपने सुसु कर लेता है, बोलता है कि ये एरिया हमारा है। सो दिस टाइप ऑफ टेरिटरी कैन बी इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। सी दिस आर द यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। देखो ये अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, ये अपना अलग 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 रह रहे हैं लेकिन एक एरिया में रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्पर्सन ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड इज कॉल्ड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो सिंपल, इनका कोई पैटर्न नहीं रहता है, ये ग्रुप भी रह सकते हैं, इंडिविजुअल भी एक भी रह सकता है। दिस इज कॉल्ड द पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्पर्सन, position of individual is independent of other individual, that means plan established in plan. That means this example is the any plant which can be grow in different
फॉरेस्ट, जंगल में क्या होता है, पेड़ कहीं पे भी, हाँ, एक मिनट, हाँ अभी सुनाई दिया, इज इट ऑडिबल? ठीक है, तो रैंडम पैटर्न मीन्स उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट टू द अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल जो भी है दैट इज इंडिपेंडेंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द रैंडम पैटर्न। ये हो गया। In a forest, plant species are randomly distributed. See here, small fern species are also there and big tree are also there. So this is called random pattern. कोई भी पेड़ कहीं पे भी उग सकता है. This is called random. Then another term is called demography. Demography is the study of the vital statistic of the population and how they change over time. अभी population means a group of individual species present in a particular area. So next level is called demography. This is a study of a vital statistic of population, how they change over time. Let's say उसका बार्थ से डेथ तक वो कैसे चेंज होता है, टाइम पे कैसे वो डिपेंड करता है, दिस इज कॉल्ड द डेमोग्राफी, हाउ इट्स बार्थ, हाउ इट्स ग्रो एंड हाउ इट्स कैन बी डेथ, बार्थ टू डेथ ओवर ए पीरियड ऑफ साइकिल, व्हाट इज द एज व्हिच कैन बी एवरेज एज, दिस स्टडी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। वाइटल स्टैटिस्टिक, कैसे कितने साल तक वो जिंदा रहता है, कौन सा साल में रिप्रोडक्शन करता है और कितने साल में वो डेथ उसका होता है, दिस बार्थ एंड डेथ स्टडी इज कॉल्ड डेमोग्राफी, this called death rate and birth rate, these are the important for the study of the demography, just remember this, what is demography, एक क्वेश्चन में आ सकता है। are the particular interest of the demographers, means demographer means which study demography is called demographers, and in demography birth rate and death rate, both these two are important. So can you say what is birth rate? जन्म रेट मतलब बर्थ रेट किसको बोलते हैं? नहीं वो तो है, मान लो अभी एक पॉपुलेशन है जो कि 50 लोग वहीं पे हैं, तो जैसे कि कोई नया जन्म लिया, ठीक है, तो ठीक है वो तो ऐड हो जाएगा, 50 से 2 लोग जन्म लिए तो 52 हो गया, लेकिन बर्थ रेट, हाँ वो मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, रेट, रेट मीन्स एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड में कितना बढ़ रहा है, एक दिन में कितना बढ़ रहा है, 2 दिन में कितना बढ़ रहा है, एक साल में कितना जन्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट, दैट मीन्स व्हेन वी कंपेयर द ग्रोथ और बर्थ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो एक मिनट में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, एक मंथ में भी हो सकता है, हाउ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय बर्थ with a specific period of time, that is called birth rate. Similarly death rate means एक साल में कितने मरे, एक महीने में कितने मरे, एक दिन में कितने मरे, एक मिनट में भी कितने मरे, that is called death rate. This is मतलब number of species which can be death for unit time, जब यूनिट टाइम की बात आता है that is called death rate और birth rate. So next sentence is important term is called life table. Just remember what is life table. Life table is the age specific summary of the survival pattern of the population. लाइफ मतलब क्या है, वो जब से बर्थ टू डेथ दिस साइकिल इसको लाइफ, वो कैसे रहता है। सो दिस एज स्पेसिफिक समरी, मान लो इसका बर्थ मीन्स उसका एज 0, डेथ मीन्स मान लो 100 है, ठीक है, वो 100 साल तक जिंदा रहा। सो ये डिफरेंट एज, उसका 50 जब एज होगा तो वो कैसा रहेगा, उसका 30 होगा तो वो कैसा रहेगा। सो एट दैट डिफरेंट एज हाउ द सर्वाइवल पैटर्न, हाउ द स्पेसीज दैट कैन बी सर्वाइव, दिस स्टडी इज कॉल्ड लाइफ टेबल एनालिसिस। एक पार्टिकुलर स्पेसीज का बोला जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अपना डिफरेंट टाइम में कैसा सर्वाइव करता है, दिस स्टडीज का लाइफ टेबल। इज इट क्लियर? लाइफ टेबल किसको बोलेंगे? सर्वाइवल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड लाइफ टेबल। जस्ट रिमेंबर दिस, सर्वाइवल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एज स्पेसिफिक, डिफरेंट एज में उसमें कैसे उसका लाइफस्टाइल कैसा है, दिस स्टडीज का लाइफ टेबल constructed by following the fate of a cohort age class organism from birth to death। ये कुछ नहीं है,
सीधा जैसे कि मैं बोला ये बार्थ है, दिस इज डेथ. सो बार्थ टू डेथ, हाउ द पैटर्न of the species organism they can live, this is called life table. हाँ सुनाई दिया, अभी सुनाई दे रहा है? नेटवर्क थोड़ा डाउन है. हाँ सुनाई दिया, अभी भी कट रहा है. हाँ हाँ. सो जी जी, लाइफ टेबल अभी समझ में आया आपको? हाँ. ओके. सो लाइफ टेबल मीन्स स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन बाथ टू डेथ. एक कोई भी पॉपुलेशन में कोई स्पेसिस है, हाउ इट लिव्स इन डिफरेंट एजेस. आपको जब जब जन्म हुआ कोई स्पेसिस, तो उसमें वो क्या खाता था, वो कैसे रहता था. 5 साल हुआ तो वो कैसे खाता था, कैसे रहता था. उसको 10 साल हुआ. अप टू डेथ वी हैव टू स्टडी डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्पेसिस अकॉर्डिंग टू इच एज. दिस स्टडी इज कॉल्ड लाइफ टेबल एनालिसिस. So survival pattern or life style of the particular species in a population is called life table. Is it clear? हाँ. फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक लेकर डिफरेंट एज टाइम पे वो कैसे उसका लाइफ बिहेवियर है, दिस एनालिसिस कॉल्ड लाइफ टेबल. Life table built by determining number of individual that die in each age group and calculating the proportion of the surviving age. मान लो एक एरिया में 100 numbers of एक इंडिविजुअल स्पेसिस ऑफ देयर. लेट्स से टाइम t इक्वल टू 0, दैट इज 100 numbers. लेट्स से t इक्वल टू 50, 50 साल के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर. इफ द टी इक्वल टू 100 साल के बाद उसमें क्या चेंजेस आए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज और डिफरेंट टाइम वी हैव टू स्टडी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन दैट एरिया. दिस स्टडी इज कॉल्ड लाइफ टेबल. डाटा फ्रॉम लाइफ टेबल हार्ड टू कलेक्ट फॉर वाइल्ड पॉपुलेशन. जो फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, वी हैव टू डिफरेंट, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द डाटा. वो कैसे रहता है हमको कैसे पता चलेगा एक पार्टिकुलर स्पेसिस में, मतलब एक एक्वेरियम हो गया या मैन मेड एनवायरमेंट हो गया, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द लाइफ पैटर्न ऑफ द पार्टिकुलर स्पेसिस. बट इन केस ऑफ वाइल्ड और इन केस ऑफ फॉरेस्ट वी हैव टू डिफिकल्ट टू कलेक्ट द लाइफ डाटा ऑफ द पार्टिकुलर स्पेसिस. ये इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है ना? दिस इज लाइव टेबल फॉर, लाइव टेबल फॉर ग्राउंड स्क्वायरल. ये एक स्पेसिस एग्जांपल है, ये याद करना जरूरत नहीं है, बस देखना पड़ेगा. ये ग्राउंड स्क्वायरल है, जो कि गुंडुची बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, स्क्वायरल जो पेड़ पेड़ पे कुत्ता रहता है, स्क्वायरल. दिस स्क्वायरल का उसका मेल एंड फीमेल्स का लाइव टेबल है. लेट्स से एज 0 to 1 हियर, जब जन्म होता है कोई भी 1 साल के बाद, नंबर अलाइव एट स्टार्ट ऑफ द ईयर. पहले मान लो ये इतने नंबर ऑफ जन्म लेते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ अलाइव स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये इसको छोड़ो, ये छोड़ो. नंबर ऑफ डेथ 337 जन्म लिया, उसमें 207 मर गए, क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, दूसरा कोई खा जाता है, प्रॉपरली वो नहीं हो पाता है उनका सर्वाइवल. डेथ रेट कितना मरे बाय कितना जन्म लिया. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 1 से 1 साल के अंदर वो 1.33 उसका एवरेज लाइफ, उतने साल जिंदा रहता है. तो जैसे ही उसका एज बढ़ता जाता है, दिस एलाइव नंबर्स आर अगेन डिक्रीजेस. देखिए जैसे कि 9 से 10 साल के बाद इतना साल तक बहुत कम ही जिंदा रहता है, क्योंकि वो लोग फिर उनका लाइफ उतना स्पान रही नहीं रहता है. So these are the different study of the females. These are the males. Similar this kind of, just see the this example. Means I have to want to say the different age, what is the number of the population present in the species, and what is the death rate, what is the birth rate. We have to just see the lifestyle statistics. This is the life table. ये टेबल बना लिया हमने, कितने जन्म लिया, कितने मर गए, ये बना लिया. दिस इज कॉल्ड लाइफ टेबल. तो लाइफ टेबल फॉर ग्राउंड स्क्वायरल शो दैट डेथ रेट फॉर द मेल्स आर हायर देन द डेथ रेट ऑफ द फीमेल्स. अभी ये दोनों में दिखा रहा है डेथ रेट. देखो दिस इज द डेथ रेट. दिस डेथ रेट इज हाई फॉर फीमेल एंड डेथ रेट इज लो फॉर मेल. यहाँ पे कम लोग मर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा मर रहे हैं, वही बता रहा है वो. Also notice the mortality rate is quite consistent from the one to next year. Mortality rate means death rate.
Death rate is in terms of called mortality rate, and birth rate is also called as natality rate. ये नोट कर लीजिए, नाटालिटी। नाटालिटी मतलब बर्थ रेट और मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट। यहाँ पे नहीं लिखा है, जस्ट नोट डाउन। मोर्टालिटी मीन्स डेथ और नाटालिटी मीन्स बर्थ। मोर्टालिटी रेट मीन्स डेथ रेट और नाटालिटी रेट मीन्स बर्थ रेट। हाँ, सो सर्वाइवरशिप कर्व, नेक्स्ट टर्म आ गया सर्वाइवरशिप कर्व। हम लोग को तो अभी पता चल गया कि हाँ ये दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव अप टू 10 years 15 years। एक टेबल बना लिया, व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस, व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेथ, सब हो गया लाइफ टेबल में। तो इन नेक्स्ट फेज सर्वाइवरशिप कर्व, this data in a life table can be represented in a graphical curve that is called survival curve। That means the life table data, what are how those life spent in the different age or age group, if you present this life uh, table in form of curve, then it is a called survivability curve। सिंपल लाइव टेबल जो है टेबल फॉर्म में है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड इन द ग्राफिकल फॉर्म। सेम टेबल वी कैन प्लॉट इनटू द ग्राफिकल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप कर्व। लेट्स सी वन एग्जांपल। कर्व usually based on the standardized population of 1000 individuals and the x-axis table logarithm। That means this curve, when we plot this live table into live curves, normally n equal to 1000, this is minimum size। See, this is the सर्वाइवरशिप कर्व। अभी यहाँ पे देखिए, पहले मिनिमम 1000 नंबर्स ऑफ एट जीरो टी इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो, जैसे हम स्टडी करने के वहां पे टाइम इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जब हमने स्टडी स्टार्ट किया, if there are 1000 numbers of the these squirrels are there, when as the age increases, जब इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल ऐसे टाइम इंक्रीज हो गया, एज इंक्रीज हो गया, तो 2 साल के बाद क्या हुआ, ये 1000 जो थे यहाँ पे ये लोग कितना पहुंच गए, करीब 150 के आसपास में पहुंच गए। ये मेल है फीमेल है, कोई भी एक भी देख लीजिए चलेगा। 4 साल के बाद ये लोग क्या गए, मेल आ गया 30-40 में पहुंच गए, और ये जो फीमेल है ये भी कम से कम 70 के आसपास आ गया। सो दिस नंबर, सी दिस, देयर आर इनिशियली 1000 नंबर, देन 150 numbers, then 70, then age of 6, let's it is 10 or 12 like that, or age of 8 it is 8 or 9, or age of 10, ये पूरा जीरो हो गया। हाँ, 8 और ये 1 है ना, ये 2 और 3 जो भी जिंदा रहा, मतलब इनका मैक्सिमम एज दैट कैन बी 9। 9 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा, हाँ 9 है, 9 साल ये जिंदा रहता है, कोई एक्सेप्शनली केस, तो मैक्सिमम ये लोग सब मर जाते हैं 9 साल के बाद। दिस इज द लाइफ पीरियड, तो कितने साल का कितने कितने मर रहे हैं, दिस इज फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवलशिप कर्व। व्हेन इट इज इन फॉर्म ऑफ टेबल, दिस इज कॉल्ड लाइफ टेबल। So survivalship curve can be classified into 3 general types। अभी we have to understand what is life table, what is survivalship curve, ये तो हो गया। So according to the different type of survivalship curve, this is 3 types, there are 3 types, type 1, type, this is type 1, type 2 and type 3। so different species का सर्वाइवल सब different type का है। means type 1 means we are humans or mammals, all are having survival type 1। that means say its birth, this is birth time, this is death time। मान लो ह्यूमन का एवरेज डेथ जो है, मतलब एक 100 साल जिंदा रहता है ह्यूमन, तो उसमें कैसे जिंदा रहते हैं, जीरो से लेके, देखो ये अब तो ये यहां तक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स 50 60 70, ये 70 आ रहा है। हाँ, 60 70 के आसपास मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी आदमी रहता है जो भी 100 ईयर तक जिंदा रहता है कि नहीं, तो धीरे धीरे इसका नंबर भी कम जाता है, और कोई कोई 100 में पूरा ही मर जाते हैं। दैट मीन्स एवरेज दो एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ ह्यूमन इज 70, यहाँ तक वो रहते हैं, लेकिन देयर आर ऑल्सो पीपुल्स आर देयर दैट कैन लिव अप टू 100 ईयर्स।
and this type of curve, this is called type 1. Remember. Again comes to type 2. टाइप 2 देयर इज स्ट्रेट डिक्लाइन। ये जो टाइप 1 है ये कांस्टेंट रहता है फिर डिक्लाइन होता है। टाइप 2 देयर इज स्ट्रेट डिक्लाइन, दैट इज कॉल्ड टाइप 2। एग्जांपल स्क्वायरल, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 सर्वाइवल सब। एंड देयर इज ए थर्ड टाइप इज कॉल्ड टाइप 3। हियर देयर इज a sharp decline at the initial time, there is a high huge number of population and the lives as the time increases, age increases, the initial period of time there is a severe decline in the number। उसके बाद क्या हुआ, जो मर जाता है तो ठीक है, बट हु आर इन एलाइव दैट कैन बी लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स। जो 2-4 लोग बच जाते हैं, मान लो यहाँ पे 1-2 लोग जो बच जाते हैं, इट कैन बी लिव्स अप टू 100 ईयर्स, बट इनिशियल फेज मैक्सिमम मोर्टालिटी ऑकर्स इन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड टाइप 3। और इन टाइप 1 इनिशियल जो बच्चे के पीरियड में मतलब छोटे टाइम पे वो ज्यादा नहीं मरते हैं, उनका डेथ रेट ऑकर एट लास्ट फेज। दिस इज द 3 डिफरेंट टाइप्स। लेट्स सी टाइप 1 कर्व जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज द एनिमल दैट कैन प्रोड्यूस यंग बट केयर ऑफ देम वेल। जैसे कि जो बच्चा पैदा करता है उसको अच्छे से पाल सकता है। एग्जांपल ह्यूमन एलिफेंट्स। डेथ रेट विल बी लो, this is the important, death rate is will low in type 1, just remember this, and death increases sharply as old age। जैसे बूढ़े हो जाता है, देखो यहाँ पे जैसे ही वो 50 60 70 के आ जाता है वो तुरंत यहाँ पे मर जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइप 1। अगेन टाइप 2 cause fairly steady death rate throughout the life। टाइप 2 देखो कोई मतलब ऐसा है नहीं कि क्यों मर रहा है, वो अपने आप मर रहे हैं जैसे कि टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो देयर इज ए स्टेडीली डिक्रीजेस, कांस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एज, कोई भी एज में मर सकता है वो। दिस इज कॉल्ड टाइप 2। डेथ इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ चांस प्रोसेस ओवर व्हिच ऑर्गेनिज्म लिटिल कंट्रोल। दैट मींस कोई दूसरा आके उसको खा गया तभी वो मर सकता है, बूढ़ा होकर मरना बहुत कम रहता है। दिस इज कॉल्ड टाइप 2। टाइप 3, this type of species are produced in large number of young which there is little number of offspring can be remains। बहुत सारे बच्चा एक साथ में पैदा करते हैं लेकिन बहुत कम लोग जिंदा रहते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज कॉल्ड ओयस्टर। दिस इज द सी स्पेसीज व्हिच कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर। और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा जन्म करते हैं लेकिन उसमें बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं। बिकॉज दिस सर्वाइवल, दिस इज सर्वाइवल ऑफ यंग इज डिपेंड्स ऑन लक। उसको अच्छे से खाना मिला, देखभाल मिला, तभी वो जिंदा रह पाएगा, बाकी सब मर जाएंगे छोटे टाइम पे। दिस इज कॉल्ड larva released into sea have only small chance of setting down the suitable substance। that means जो मछली का अंडा, मान लो समुद्र में मछली अंडा दे दिया, करोड़ों करोड़ों अंडा दे देगा, तो बट दिस स्पेसीज आर नॉट सर्वाइव, पूरा सारे सर्वाइव नहीं करते हैं। सो दिस आर द टाइप 3, द वेयर the mortality is increases at the initial stage। reproductive rate, ये तो बता सकते हैं व्हाट इज reproductive rate। मोर्टालिटी रेट हो गया, नाटालिटी रेट हो गया, दैट मींस बर्थ रेट और डेथ रेट हो गया। अनदर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रेट। दिस इज द रिप्रोडक्टिव टेबल और रेट और फर्टिलिटी रेट where the age it can be produce a new offspring, the time where a species can be produce a new offspring। this per year means within 1 year, within a week, within a month, how many new offspring are produced at that particular age। that means for example human का ले लेते हैं, human what is the minimum age for the reproduction of human, मान लो 20 से 25 साल उसका बेस्ट है, तब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एलिफेंट इट कैन टेक्स अप टू 15 to 20 years। in case of squirrel it can take 2 to 3 years। so there are different types or different age group where the species can be able to reproduce, that is called reproductive rate। how or where the offspring can be produce new offspring, that means capability to produce new offspring, that is called reproductive rate। this table or reproductive table that define the number of female produced by each age group। here reproductive table also another defined, male cannot be produce new offspring, as male contribute to produce new offspring, लेकिन जो मेल लोग हैं वो ज्यादा
होने से भी रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा नहीं होगा, एंड द रिप्रोडक्टिव रेट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फीमेल, कितना फीमेल है उस ग्रुप में, दैट ऑल्सो डिपेंड्स at the particular age, that reproductive rate depends on the number of females at this reproductive age group, that means वही जो एज में उसका रिप्रोडक्शन होगा उसी एज वाले कितने लोग हैं उसी टाइम पे फीमेल, that depends product proportion females in a given age breeding the number of female offspring, that means exactly what are the different numbers of female that can be produce different offspring. See, this is one example, reproductive table. This table belongs to the different age group. See, this is 0 to 1, 0 to U. This is the breeding age group of same ground squirrel का ही example लिया है इसने. Proportion of females winning a litter. ये जन्म हुआ ही उसे रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ी होगा, नहीं होगा. मीन ऑफ साइज ऑफ लिटर, दैट मीन्स इतने कितना लोग उसमें मेल पर फीमेल्स हैं. मीन ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ लिटर, दैट मीन्स how the numbers are depends on each age group. See here, gradually increases the numbers and gradually again decreases. That means in the particular age group of ये जो दो है ना ये वाला, this age group 2 to 6, this is the major reproductive age group of the squirrel, where the number of offspring are produced more. This is called reproductive table, which can describe the number of offspring produced per number of female. Another term is called life history. Study of historical focuses explaining the organism differ in their reproductive patterns. तो कैसे उसका reproductive pattern change होता है according to life. This is called life history. Similar thing, life history traits कुछ नहीं है ये, just traits are product natural selection. The life history traits are produced of natural selection. See, what is the natural selection? Natural selection means nature can select. We have not ability to select the reproductive rate and reproductive the system. The nature already selected where and how this species can be reproduced. This life history are outcome of the evolution. Evolution. Have you heard about the word evolution? Evolution सुना है पहले कभी? हाँ, इवोल्यूशन कभी नहीं सुना. इवोल्यूशन, हम लोग ह्यूमंस कैसे जन्म हुए, पहले हम लोग बंदर थे, फिर ऐसे हुआ, होता नहीं है इवोल्यूशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, चेंजिंग. हाँ, इंसान तो तुरंत पैदा नहीं हुआ ना, पहले मछली हुआ, उसके बाद रेप्टाइल्स हुआ, फिर बंदर हुआ, एप हुआ, सिंपंजी हुआ, फिर बाद में ह्यूमंस हुआ. जो दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी एज वेल एज द एनाटॉमी प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन. दैट मीन्स धीरे धीरे इंक्रीमेंट, अच्छे इंक्रीमेंट होना है उनका सिस्टम, फूड हैबिट में, रिप्रोडक्टिव हैबिट में, उसका टैलेंट में, सब कुछ जो होता है इवोल्यूशन, ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लोअर स्पेसीज टू हायर स्पेसीज. And this evolution also changes this life history. And this current life history reflects that organism is the past adapted. That means अभी क्या होता है ना, what is the past life history and the current life history. Past life history एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. पहले क्या आता था, हम मच्छर मारने के लिए वो गुड नाइट यूज करते थे, ठीक है, वो गुड नाइट जो नॉर्मल वाला गुड नाइट आता था. अभी लेकिन वो नॉर्मल वाला गुड नाइट यूज करोगे आप तो मच्छर नहीं मरेंगे. अभी क्या यूज करना पड़ेगा, गुड नाइट प्लस है ही नहीं, गुड नाइट प्लस है, उसके बाद नीम वाला है और दूसरा कुछ हाई पावर वाला है, लो में नहीं मरेगा. सेम गुड नाइट है, पहले मरता था अभी नहीं मर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज द मॉस्किटो व्हिच आर नाउ ए डेज द लाइफ इन देयर लाइफ हिस्ट्री, दे आर जस्ट एडप्ट द केमिकल्स. वो केमिकल का आदत हो गया उनका. नॉर्मली बोला जाए तो किसी जो दारू नहीं पीता है उसको मैं छोटा सा बोतल दारू में पी देने से उसको नशा लग जाएगा, जो दारू पीता है उसको 2 बोतल पीने से भी नशा नहीं लगेगा. दैट मीन्स द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज दैट एडप्ट दैट कंडीशन. दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लाइफ हिस्ट्री. लाइफ हिस्ट्री डाइवर्सिटी. What is the meaning of diversity? Diversity means different. Diversity, the term having some different in common. Means एक साथ में common है, same species है, but there are different types of their diversity. Means different types. Some species exhibit
similarity or Big Bang reproduction. These species reproduce once and die. There are some species having Big Bang reproduction. That means it's called similarity. In a lifespan of that period, that means bamboo, salmon, and some of the plants are there. There is only one time they can reproduce in their entire life. कोई कोई क्या होगा ना, एक टाइम ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसी टाइम में बहुत सारे रिप्रोडक्शन कर लेंगे, फिर बाद में वो नहीं कर पाएगा थ्रू आउट द लाइफ. दिस टाइप ऑफ लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड बिग बैंग रिप्रोडक्शन और सेल में पैरिटी, सेमल पैरिटी. This type of reproduction of life history is called seminal parity or the Big Bang. That means it can be reproduced once in their lifetime. एक lifetime जन्म से मृत्यु तक कभी भी वो अपने चाहे मन चाहे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, एक टाइम ही रिप्रोडक्शन करेगा वो. एग्जाम्पल है, ये इंपोर्टेंट थिंग है, इसको आप याद रखना. बाम्बो, सैल्मन एंड सेंचुरी प्लांट. दिस प्लांट्स और दिस बाम्बो क्या है, बाम्बो सुना होगा नाम, एक टाइम पे ही एक ही प्रोड्यूस कर सकता है. सैल्मन, दिस इज फिश. The salmon fish they can also reproduce in a lifetime once, सिंगल में. और जब सालमन रिप्रोड्यूस करते हैं लाखों में एक साथ में रिप्रोडक्शन हो जाता है, बहुत सारे उनका नंबर्स बढ़ जाता है. Semmelporous reproduction. This is reproduction often is adaptation of aquatic climate condition. This term used as your reproduction cycle of the particular species or particular population that can be affected due to climatic condition. एग्जाम्पल ले लो, सुइटेबल ब्रीडिंग टाइम्स फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एक सिंपल एग्जाम्पल लो, जो नॉर्मल हम लोग कुत्ते लोग को देखते हैं, अभी दशहरे के टाइम पे उनको ज्यादा वो भूखते रहते हैं, ज्यादा वो रिप्रोडक्शन करते हैं. दिस इज कॉल्ड इन ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द टोटल ईयर दे कैन रिप्रोड्यूस. दिस इज कॉल्ड सेमेल्फोरल रिप्रोडक्शन. एवरी टाइम उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बस पार्टिकुलर टाइम दैट ही कैन रिप्रोड्यूस, दिस स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस. So this is called suitable breeding conditions when occurs, then also they reproduce. That means exactly he can be accumulate or it can be found sufficient amount of food, sufficient amount of shelter and sufficient amount of protection and sufficient amount of water. At that time they can reproduce. बाकी टाइम जो गर्मी के टाइम में मान लो कोई रिप्रोडक्शन हो गया, उनका बच्चा जन्म ले लिया, उसको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वैसे ही मर जाएगा. तो दैट स्पेसिस कैन बी डाई, वो पूरा मर जाएगा. That's why these species that can be reproduced in a particular time of a year. जो टाइम में उसको ज्यादा खाना मिलेगा, रहने का मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, that time that can be reproduced. That is called semmelporous reproduction. Heteroporous reproduction. How they reproduce? Some species exhibit heteroparity. That means repeated reproduction over ऑफस्प्रिंग दैट कैन ओवर टाइम. एनी टाइम कभी भी आप जाओ वो बच्चा पैदा कर सकता है. एग्जांपल ह्यूमन, उसका कोई टाइम नहीं है. कैट, बर्ड्स और हायर एनिमल्स दे कैन बी रिप्रोड्यूस एनी टाइम. दिस इज कॉल्ड heteroparity. This term you have to remember what are the different terms for the reproduction. Heteroparity means anytime reproduction. Semmelporous means season wise reproduction, and Selmiparity means Big Bang reproduction, one time reproduction. These are the different terms. ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा. So you can also, if once you can understand, you can write in own words. Semmelparity, that means Big Bang reproduction, lifetime में एक बार. Semmelporous, that means seasonal reproduction. हाँ, इसको लिख लो, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा ये स्लाइड आपका ईमेल में, फिर भी जस्ट अभी के लिए नोट कर लो ये थोड़ा थोड़ा. सेमेल्पारिटी मींस बिग बैंग रिप्रोडक्शन. डैश लेके लिख दो. सिंगल इन ए लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोडक्शन कर सकता है वो. इन सिंगल रिप्रोडक्शन इन लाइफ टाइम. एग्जाम्पल बाम्बो, सैल्मन. नेक्स्ट हो गया सेमेल्पोरस पारस. SEMELPAROUS, सेमेल्पारोस. दैट मीन्स सीजनल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग कंडीशन.
कोई कोई टाइम में उसका रिप्रोडक्शन होगा, हर टाइम में नहीं होगा। व्हेन देयर इज ए सुइटेबल कंडीशन और सुइटेबल रिसोर्सेस और क्लाइमेट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द देयर न्यू ऑफस्प्रिंग, जो जन्म पैदा होंगे बच्चे, उसको सही से बढ़ने के लिए जो टाइम में मिलेगा उसी टाइम में वो रिप्रोडक्शन करेगा, दैट्स कॉल्ड सेमिलोपोरस। और बाकी ये होगा इट्रोपोरस। इट्रोपोरस मीन्स एनी टाइम, कभी भी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनका ऑफस्प्रिंग बढ़ाने के लिए। एग्जांपल ह्यूमन, कैट, बर्ड्स। लिख लिए इट्रोपोरस, इट्रोपैरिटी, ये इंपोर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Heteroporous reproduction occurs when organisms have good prospects of reproducing in future. They are long lived. और भी जिसका ज्यादा लाइफ स्पान है, दे कैन इट्रोपोरसली रिप्रोडक्ट, दैट मीन्स ह्यूमन, उसका ज्यादा 100 ईयर्स से ज्यादा है, 100 ईयर तक है, यू कैन बी, दैट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर लॉन्ग लिव्ड। जो जिसका कम लाइफ स्पैन है, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस एट दैट मीन्स एनी टाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म आर इट्रोपोरस, having suitable to more environmental condition। कोई भी environmental condition में they can be adapt। We can also live in cold climate, we can also live in heat climate। According to the climate, our body is designed in such a way that we can adapt that climate। Again, trade off and life history। What is trade off? Organisms have finite resources which lead to the trade off between survival and reproduction। This trade off, trade means क्या है? बाजार। सीधा सीधा बोलने में ट्रेड ऑफ मीन्स बाजार बंद हो गया, ट्रेड ऑफ। इन दिस केस आवर पॉपुलेशन, देयर इज ए फाइनाइट रिसोर्सेस फॉर द न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। दिस फाइनाइट स्पेस, the trade off between survival and reproduction, that means if the lifespan is 100 years and the reproduction age starts 20 to 50, that means this lifespan is called trade off of that organism। That means here 0 to year start 100, so this 0 to 25 they cannot reproduce, and again 75 to 100 cannot reproduce। So this 25 to 70, the lifespan of that organism, that is called trade off। तो इतना तक वो अपना रिप्रोडक्शन चालू रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर वन एग्जाम्पल दिया है, बर्ड्स आर रिप्रोड्यूस हायर, छोड़ो, quantity vs quality of offsprings। So if the higher number of quality, that means low number of quantity, ये quality और quantity दोनों opposite है। ज्यादा quantity में reproduction हो रहा है, that means less chance of survival all the things, and low quantity में आपका offspring पैदा हो रहा है तो high chance of survivability। That means organisms face trade-offs between number or quality young they are produced because they have only limited quantity of resources invest। Means the quality of the offspring that can be produced, that can depends on the trade of man the time period as well as the resource of the time, resource that can be invest, that how much amount of food is available, it depends how quantity and the quality of the offspring to be produced। मान लो 5 बच्चे जन्म हुआ कोई एक बकरी का, तो बकरी का तो 5 बच्चे जन्म हुआ, तो उसमें 5 बच्चे का पिलाने के लिए तो उसके पास दूध नहीं है, तो क्या होगा, 5 बच्चे से 2 बच्चे से ही मर जाएंगे, बिकॉज ही कैन नॉट बी फीड टू द इन्फेंट्स। तो मान लो जिंदा भी रहे तो दे आर नॉट हैविंग गुड क्वालिटी, वो अच्छे हुस्ट पुष्ट के ज्यादा ताकतवर नहीं बनेंगे वो लोग। इफ देयर इज एक बच्चा जन्म हुआ, दैट मींस इट कैन हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर एंड survivability and the quality of the offspring that may high, this is called quality of the offspring। ये कुछ प्लांट्स का फोटो दिया हुआ है, कुछ है नहीं ऐसे। पॉपुलेशन ग्रोथ, नेक्स्ट हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑकर्स व्हेन बर्थ रेट एक्सीडेड डेथ रेट। एक जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ, एक जगह पे पॉपुलेशन मान लो 50 है, तो ये 50 से कब ज्यादा बढ़ेगा, 50 से प्लस कब होगा, जब व्हेन द बर्थ रेट एक्सीड, जब जन्म देने वाले ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, एट द सिमिल्टेनियसली देयर इज आल्सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कोई कुछ मर रहे हैं तो कोई जन्म हो रहा है। मान लो 5 लोग जन्म हुए
तो +5 हो जाएगा। सिमिलरली 2 लोग तो मरेंगे ना, तो 2 लोग मर गए, तो टोटल क्या हो गया, +3 में रहा माइनस, तो दिस इज पॉपुलेशन, देन वी कैन कॉल इट ए पॉपुलेशन ग्रोथ। मान लो 5 लोग मर गए, 2 लोग जन्म हुए, तो ये -3 हो जाएगा, दिस इज नॉट ए पॉपुलेशन ग्रोथ, इट कैन डिक्लाइन। 50 थे, वो 3 तो कम हो गए। सो व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पहले जितना थे, लेट एक्स थे, देन एक्स प्लस 50 थे, तो 50 से कितना ज्यादा हुए, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट मीन्स बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, जितना जन्म हो रहा है दैट कैन बी मोर देन द जितना मर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। So organism have enormous potential to increase the population, not consist of the mortality. Normally what happened, the mortality death rate is the less than the birth rate. ज्यादा लोग जन्म लेते हैं, लेट्स से इन इंडिया का भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रहा है, हम लोग मर भी रहे हैं जो पॉपुलेशन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आने, पिछले साल 130 करोड़ था, अभी 140 करोड़ हो गया, तो क्यों हो गया, इतने लोग भी तो मर रहे हैं, बिकॉज 5 लोग मरेंगे तो 1 लोग 10 लोग पैदा हो रहे हैं, that means the birth rate is more than the death rate, so the population growth occurs. Per capita rate of increase, that means इमिग्रेशन, ये 2 वर्ड्स पहले से हमने बोला है। इमिग्रेशन दैट मीन्स एडिशन, बाहर से कोई भी आ गया, और इमिग्रेशन भी मीन्स माइनस। इफ दिस बाहर से कोई आए और बाहर से कोई ना जाए, इफ दिस इज इग्नोर, इसको हम इग्नोर करेंगे, देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पर कैपिटा इंक्रीज ऑफ ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया, बर्थ रेट में भी हो सकता है, ज्यादा जन्म होंगे, और बाहर से 10 लोग आके मिस गए, ये भी हो सकता है। इफ वी हैव इग्नोर, जो बाहर गए और बाहर आए, इसको हम इग्नोर कर देंगे, सी बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, ओनली देन इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इंक्रीज, और पर कैपिटा इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। इसको छोड़ो, इसको नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। हाँ, so there are 2 types of population growth, one is called J shape population growth, see, one is called J shape population growth. J shape population growth means according to the different years there is a certain time where is rapid population growth occurs, this is called J। देखो ये J टाइप का हो गया है, that means the characteristics of some population that are rebounds, that means sometimes population are steady and after that rapidly increases, this type population करोगे J growth, J type population growth। एग्जाम्पल एलिफेंट दिया हुआ है। Another is called carrying capacity। What is carrying capacity? Carrying capacity is the maximum population size of the environment। मैं सादे बात में समझा रहा हूँ, एक एरिया है, and this area how much individuals are present, how much maximum individual, यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं in that available space, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मान लो यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, और 100 लोग ऐड हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस, फूड, स्पेस, इट इज मैक्सिमम, सो अपने आपस में उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मार होके मर जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी रिसाइड्स इन ए एरिया, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। इसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हाँ, another is called S shaped population growth। ये तो J shaped population growth हमने पढ़ा, ये certain time में क्या हुआ है, certain increase in the population, that is called J shape। Another is called S shaped। S shaped mean in certain time there is gradually increases and after certain time the increase or growth of the population is suddenly stop, this is called J S shaped। देखो ये S shaped हो गया है, this is called S shape। just remember these two words, J shape and S shape। J shape means J टाइप का रहता है, S shape means सडन स्टॉप हो जाता है उसका इंक्रीज पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड J shape, S shape। For S shape, this S shape population is the बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का, दे कैन बी S shape, एंड जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होता है दे कैन बी J shape। ये पढ़ना जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ओके, तो कुछ कुछ याद आया आपको, एनी डाउट?
जो कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स। इस स्लाइड्स में जो भी हमने पढ़ा, पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप ऐसे अभी छोड़ दोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। सो यू जस्ट गो इमीडिएटली, आज नहीं तो आज टाइम नहीं मिला है तो कल आप इस स्लाइड में जाके अच्छे से उसको रेडी करना। जो इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स पूरा सारे लिखने का जरूरत नहीं, जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट राइट इन ए पेज ऑफ पेपर, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब होगा फिर तुरंत बताइए कि हाँ इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। ये इतना ही छोटा सा सिंपल काम करना है, ठीक है। इफ यू वांट्स यू हैव अंडरस्टैंड, देन यू जस्ट राइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ऐसे जो लिखा है ऐसे नहीं है। एग्जाम्पल मैंने एक दे रखा हूं, जैसे कि व्हाट इज द बार्थ रेट। क्वेश्चन आया व्हाट इज बार्थ रेट। बार्थ रेट क्या है, आप सिंपल भाषा में बोलिए। हाँ, मैं इसको इंग्लिश में बोलिए, मतलब क्या लिखेंगे आप। मैं तो सिंपल एक मार्क का क्वेश्चन मिला, व्हाट इज बार्थ रेट लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोलिए। हिंदी में सही बोल रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। द नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जन्म ले रहे हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलना है। बाय रिप्रोडक्शन ओवर ए टाइम, एक टाइम पीरियड में कितना नया पॉपुलेशन पैदा हो रहे हैं, वही है। समझ में आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसे लिखना है। डेथ रेट, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज और डिकीज और डेड विद इन ए टाइम पीरियड, एक साल में, एक महीने में कितना वो मर रहा है। दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट, कितना जन्म रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। सिंपल सिंपल वर्ड है, कुछ नहीं है। आप एक बार इसका जाइए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। और वो जो कुनेल, क्या नाम है उनका, भूल जाता हूँ मैं। हाँ, निकुल, उनको अब मिलते हैं ना। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को उनको आप कांटेक्ट में है तो आप बता दीजिएगा। ऐसे क्लास मिस करेंगे ना, एक हफ्ते में तो 2-3 दिन ही क्लास हो रहा है, फिर उसमें मिस करेंगे तो जैसे आज जैसे कि नया टर्म कुछ सीखने को मिला, ये टर्म अब आप खुद में पढ़ने से भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इधर लाइफ लाइफ मतलब क्या है, लाइफ साइंस का टर्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको बोलिए सीरियस में आ जाएंगे, 1-2 दिन तो क्लास हो रहा है। So let stop this class here, and if you want some recess 5 minutes you can go, and we have next we have to join 9:15, 9:15 में फिर से ज्वाइन करेंगे। We have to study the environmental issues, उसका एक हम पढ़ेंगे। इज इट इज मतलब ओके, 9:15। हाँ, ओके, सेम लिंक है, सेम में ज्वाइन कीजिएगा, ओके। अच्छा, तो इप 9 से 10 क्लास का फिर कैसे करेंगे। एक, हाँ हाँ, जी जी, हाँ अभी ज्वाइन हुए मिस्टर निकुल। हेलो, कहाँ थे आप, एक क्लास खत्म हो गया।